ویلکم بیک ناظرین. ہم فلوری کلچر پہ بات کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھولوں کی کاشت کس طرح کی جائے, ان کو بیچا کس طرح جائے, ان کی کاشت کے حوالے سے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کیسے کیے جائیں. اس وقت جو ہے گلاب کی کاشت کا موسم ہے, اس پہ بھی بات کریں گے کہ گلاب کی کاشت کے حوالے سے آپ نے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ جہاں تحقیق کر رہے ہیں, اس کے باقی شعبوں کو دیکھ رہے ہیں, اس کی اقسام کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. میں مارکیٹنگ پہ اس لیے ذرا فوکس کر رہا ہوں کہ اگر کاشتکار کو منافع مل رہا ہوگا, جس بھی بندے کو منافع مل رہا ہو تو اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور اس کی طرف رجحان زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ کی یونیورسٹی اس کی مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی کچھ دیکھ رہی ہے کہ اس میں مارکیٹنگ میں بڑا پوٹینشیل ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پھولوں کو کئی شکل میں بیچا جا سکتا ہے, لیکن اس کو بیچنے کے لیے, اس کی پیکنگ کے لیے, جیسے پوری دنیا میں ایک پھول جو ہے وہ ایک الگ پیکنگ میں ملتا ہے, دستیاب ہوتا ہے اور مارکیٹ میں پڑا ہوتا ہے. تو اس کی مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کی یونیورسٹی کو دیکھ رہی ہے؟ جی, اس میں ہمارا فوکس ہے یہ مارکیٹنگ میں سب سے پہلی چیز ہے اس کی ویز لائف کو بڑھانا. ٹھیک ہے. اگر پھول کی ہم ویز لائف کو بڑھا لیتے ہیں تو پھر اس کو ہم ڈسٹنٹ مارکیٹ میں بھی لے کر جا سکتے ہیں, ایکسپورٹ کے اندر بھی وہ ہمیں ہیلپ فل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی. یہ انکھلا گلاب جو ہے اس کی اب لائف کتنی ہے, مطلب ڈنڈی سمیت؟ یہ آلموسٹ اگر آپ اس کو ایسے پانی میں یعنی کہ وداؤٹ اینی پریزرویٹو رکھیں گے تو یہ آپ کے 5 to 6 to 7 ڈیز آلموسٹ اتنے جو ہے آپ اس کو ڈبل کرنے جا رہے ہیں؟ ہم اس کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ اکثر جو ہے ہماری کچھ ایسی ٹریٹمنٹس ہیں جس میں یہ 20 ڈیز تک بھی پھول ایکسٹینڈ کر جاتے ہیں. اچھا, 20 ڈیز تک 20 ڈیز فریش رہتا ہے؟ جی, فریش رہتا ہے. اچھا. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ اگر ہم پہلے تو فارمر کی ٹریننگ کریں کہ ہر پھول کی سٹیج کیا ہے جس پر ہم نے اس کو ہارویسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہر فلاور کی, گلیڈیولس کی علیحدہ ہے, روز کی علیحدہ ہے, اینڈرائنم کی, ہر پھول کی علیحدہ ہے. ایک تو اس پر ٹریننگ, اور دوسرا ہم یونیورسٹی میں خود پروڈکٹ بناتے ہیں, فلاور بوکے ہے ڈفرینٹ ٹائپس کے. ہم اپنی یونیورسٹی میں جتنے بھی فلاور بوکے ہیں خود یونیورسٹی میں بنا کر اپنے فنکشن میں یوز کرتے ہیں, باہر سے پرچیز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹ بالکل کریٹو نیو آئیڈیاز اس کے اندر لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی انوویشن ہے جی, اس میں ڈیفرنٹ انداز سے بوکے بنانے ہیں, کیسے کیسے بنانے ہیں, مارکیٹ سے بالکل ڈفرینٹ ہے. پروڈکٹ جتنا بھی یوز کرتے ہیں اس میں وہ جتنا بھی نیچرل ہوتا ہے وہ ڈیکمپوزیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہم اس لحاظ سے پھولوں کو یوز کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ہمارا کہ فائٹو ریمیڈیشن کا, کہ یہ جو ہیوی میٹل پولوشن ہے سائل میں, ان کو ہم یہ آرنامنٹل پلانٹس کو لگائیں. جب پھول تیار ہو جائے پھول سیل کر لیں, جو زمین میں جب لگائیں گے تو یہ پودا زمین سے اپ ٹیک کر لے گا ہیوی میٹلز کی. تو یہ دو کام ہم اس سے جو ہے نا ایٹ اے ٹائم اس سے لے لیں. ٹھیک ہے. زمین بھی سنبھالی جائے گی, زمین بھی سنبھالی جائے گی اور ہمیں ییلڈ ملے گی فارمر کو. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ جو اگر ہم ویجیٹیبلز گرو کرتے ہیں تو اس میں پولوٹیڈ واٹر میں یا جو سیویج واٹر ہوتا ہے اس میں تو وہ جتنی ہیوی میٹرز ہے وہ تو چلے گی پلانٹ میں, وہ ہماری فوڈ چین میں چلی جائے گی. تو جو آرنامنٹل پلانٹس ہیں دے آر یوز اون فار دی ایستھیٹک پرپز. اچھا. تو اس پرپز یہ ایسا بھی دیکھیں اس میں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ویجیٹیبل میں وہ چلی جائیں گی تو اس کے مضر اثرات ہیں, تو اس کی خوشبو پر اور اس کی رنگت پر بھی پھر اثر پڑے گا, کوئی خراب ہوگی اگر آپ اس قسم کے پودے لگاتے ہیں؟ جی, بڑا اچھا کوشچن ہے. اس میں ہم ساتھ یہ بھی چیک کر رہے ہیں کہ پلانٹ اپنے کن پارٹس میں ان کو سٹور کرتا ہے. اچھا. اس کی بھی پلانٹ ڈفرینٹ میتھڈ یوز کرتا ہے. اکثر اوقات وہ آبزارو کرتا ہے, روٹ میں سٹور کر لیتا ہے. اکثر اوقات ان کو آبزارو کر کے لیف سے اس کو جو ہے نا ایئر میں چھوڑ دیتا ہے لیس ٹاکسک کر کے. تو یہ ڈفرینٹ میتھڈ یوز کرتا ہے پلانٹ ان کو جو ہے نا. آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے پودے وہ کون سے سوٹیبل ہیں, جو ادھر لگائے جا سکتے ہیں, جو ادھر لگائے جا سکتے ہیں. جی, اس لحاظ سے. اچھا. تو اس میں کتنی کامیابی ہوئی؟ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. ان پروگرس ہے سر. اس میں سیریز آف ایکسپیریمنٹس ہیں, آلموسٹ ہاف ہمارے ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے کمپلیٹ ہو گئے تو پھر ہم یہ جو فلوریکلچر کرافٹس ہیں ان کو ہم جو ہے اپنے فارمر کو بتائیں گے کہ یہ کرافٹس آپ لگا سکتے ہیں, یہ فائٹو ریمیڈیشن بھی کریں گی اور مارکیٹ کے لحاظ سے بھی امپارٹنٹ ہے. دوسرا جو فارمر کے لیے امپارٹنٹ چیز ہے, ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ نے بزنس سٹارٹ کیا اور انہوں نے اس کے اندر بڑی پروگرس بھی کی, جو کہ کافی سالوں سے جو گروور تھے ان کو بھی کمپیٹ کیا انہوں نے فلوریکلچر بزنس میں. وہ ہے اسپیشلٹی کٹ فلاور. اچھا. اب جیسا کہ ہم یوز کرتے ہیں روزز, گلیڈیولس, موسٹلی یہ دو یوز کرتے ہیں. ہم نے سن فلاور اگر آرنامنٹل ہے, خوبصورت ہے, بوکے میں لگائے بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اس کا رجحان نہیں ہے. یہ بڑی اینٹرائنم یہ یوز نہیں کر رہے, اسٹاک فلاور ہم یوز نہیں کر رہے. آپ نے بوکے میں لگایا ہے؟ ہم نے ان کو بوکے میں لگایا. اچھا. اور اتنا لوگوں نے پسند کیا ہے اس کو, بہت زیادہ یونیورسٹی میں بھی جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا. تو دوسرا ہمارا فوکس یہ ہے کہ فارمر جب اس کے لیے کچھ زیادہ ایکرز نہیں چاہیے, ایک ایکر میں ڈفرینٹ پورشنز بنا لیں, ان میں ڈفرینٹ پھول لگائیں. ٹھیک ہے. جو ہے فلورسٹ شاپ والے ہیں وہ خود ان کے پاس جائیں گے
परचेज करने के लिए। पता लगेगा तो फिर ही जाएंगे ना। ये जो आपने बनाए बुके डिफरेंट किस्म के, ये कम से कम इन शॉप वालों तक तो पहुंचने चाहिए थे ना, या उनको देखना तो चाहिए था कि भी ये इस किस्म के बुके भी बन सकते हैं। और ख़ास तौर पे जैसे सूरजमुखी के फूल को तो कभी कोई लिफ्ट ही नहीं कराता है बुके में डालना है, तो आपने अगर उसे बुके में शामिल किए तो ज़बरदस्त तजर्बा है। तो उनको जब भी पता लगेगा तभी इसका रुझान आएगा। अभी तक तो मैंने किसी शॉप पे नहीं देखा कि सनफ्लावर जो है वो लगा हुआ होगा। नहीं, ये है कि असल में फिर जो हम ये अगर लाहौर की साइड पर जाएंगे पिंडी में, तो उधर ये आपको डिफरेंट फूल मिलेंगे बुके में। हमारे इधर थोड़ा सा ये है कि हमें थोड़ा सा फोकस और वर्क करने की ज़रूरत है कि ये जो हमारी फ्लोरिस्ट शॉप है वहाँ पर इन फूलों को लेकर जाएं। तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, इनको लेकर जा रहे हैं। अच्छा। अगर हमारे फार्मर इसको ग्रो करते हैं, किसी भी शॉप पर लेकर जाते हैं, वो अगर मसल के 10 फार्मर जाते हैं फ्लोरिस्ट अपने फूल लेकर, तो 10 के पास एक ही फूल है जो ग्लैडियोलस है। अगर एक दो डिफरेंट होगा तो वो उसको जरूर प्रेफर करेंगे, अट्रैक्शन आएगी उसमें। ठीक तो हमारा एक इसकी तरफ फोकस है कि फार्मर को भी थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि इसको मज़ीद जितना फार्मर्स तक लेकर जाएं और यही फूल मार्केट में लेकर जाएं, प्रॉफिट भी मिलेगा और जो है ना नए फ्लावरिंग क्रॉप्स भी आएंगे। ठीक है सगीर साहब, ये बताएं कि आप जो फूल लगाते हैं इसकी कलमें कहाँ से लेते हैं? नर्सरी से कहाँ से मिल जाती हैं? हमारे पास बूटे होते हैं ना पौधे, उसमें काट के फिर कलमें लगा देते हैं। अच्छा, आपके पास अपनी दस्तियाब होती है? हाँ जी, अपनी होते हैं। चल, मैं अभी आपसे मज़ीद इस पर बात करूँगा। ताज साहब, ये जो हमने देखा है कि फूल ख़ास तौर पे शादी ब्याह में या हुजाज कराम आ रहे हैं, उम्रा करके आ रहे हैं, उनके लिए फूल बिक रहे होते हैं, लेकिन जो ख़रीदार है वो ढूंढता फिर रहा होता है कि यार ये फूल भी असली नहीं है। अच्छा, ये असली और नकली वाला जो मोतिया का फूल ढूंढ रहे हैं, वो मोतिया नहीं है, मोतिया की शक्ल का कोई और फूल आ गया है जी, उसमें खुशबू नहीं है। ये चलो सोसाइटी में तो खुशबू ख़त्म हुई, ये फूलों में खुशबू क्यों ख़त्म हो गई? नहीं, बहुत सारी क्रॉप्स ऐसे हैं जी जो परमानेंट फ्रेगरेंट हैं। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि फ्रेगरेंट नहीं है और वो ऑर्नामेंटल यूजेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब जैसे मोतिया है, चंबेली है, इसके वो हार और गजरे वगैरह बनाते हैं। फिर इसके अलावा सुरखा गुलाब जो है उसमें खुशबू कम है। सेंटिफुलिया गुलाब है, वो गुलकंदी गुलाब है, उसमें जो है खुशबू ज़्यादा है। उसको मुख्तलिफ अद्वियाती मकासद जैसे गुलकंद है उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके जो है एसेंशियल ऑयल निकालते हैं, उसका अर्क गुलाब जो है वो निकालते हैं। जो हमारा एक देसी तरीका था कि हकीमों के पास लोग बीमार होके जाते थे, किसी को पेट का प्रॉब्लम है तो वो जाते थे, वो अर्क गुलाब उनको पिलाते थे, वो ठीक हो जाते थे। इस पर भी बात करते हैं। मैं पहले ज़रा थोड़ी सी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं काश्तकार होते हैं, वो भी आम आदमी भी देख रहा होता है, काश्तकार भी बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो वो उनकी आगाही के लिए अब जैसे अभी आपने कहा कि 15 जनवरी तक इसकी काश्त मुकम्मल कर ली जाए, तो इसमें क्या बुनियादी चीज़ें हैं? खेत की तैयारी कैसे होनी चाहिए और कलमों का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, खाद और पानी का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, उसके बारे में भी ज़रा बता दें। जी बिल्कुल जी, मैं इस हवाले से कहूँगा कि एक साला पुख्ता शाख अगर सुरखा गुलाब है या सेंटिफुलिया गुलकंदी गुलाब है या टिब्बा सुल्तानपुर इधर इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काश्त हो रहा है। तो अगर आपने कलमें लेनी है तो वो भी वहीं से मिल जाएंगी बेहतर? जी बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सारे ग्रोवर हैं, वहाँ से मिल जाएंगे। या यहाँ पे जिन लोगों ने लगाया होगा वो आपको मुआवजे के एवज जो है कलम दे देंगे, 1 रुपये की कलम दे देंगे फॉर एग्जांपल। तो उसमें यह है कि एक साला पुख्ता शाख जो है गुलाब की, वहाँ से उसकी कलम तैयार की जाए। एक चीज़ दूसरी ये है कि उसमें बीमारी नहीं होनी चाहिए। जो बीमार उसको कैसे देखना है? जी बिल्कुल, उसके ऊपर जो है बीमारी के निशान वाज़ेह हो जाते हैं। जो एक साला पुख्ता शाख है उसका रंग थोड़ा सा तब्दील हो जाता है, उस पर स्ट्रीक्स आ जाती हैं, ठीक है, वो शाख यूज़ करें। फिर उसके बाद अगला स्टेप ये है कि उसकी कलम की लंबाई जो है वो ठीक हो, 6 से 9 इंच तक रखनी चाहिए, ठीक है। और अगला स्टेप ये है कि जब कलम भी आपने तैयार कर ली, पुख्ता शाख से भी कर लिया, सेहतमंद पौधा भी ले लिया, तो अगला स्टेप है कि उसको प्रॉपर आपने तरीके से लगाना है। उसके लिए ज़मीन की तैयारी जो है, पहले हल चलाएं, उसमें हल चला के उसको खाली छोड़ें। फिर उसके बाद जो है ना, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लगाने से 2 महीने पहले जो है उसमें 3 ट्राली गोबर की खाद फी एकड़ जो है ना डाल दें, वो डालें, ठीक है। उसमें ऑर्गेनिक मैटर उसका बेहतर होगा, उसकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है वो बेहतर होगी, ज़मीन की जो है स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद उसको रोटावेट कर दें। रोटावेट करने के बाद फिर उसमें से जड़ी बूटियाँ वगैरह जो उगी हैं उनको आप ख़त्म करें। ख़त्म करने के बाद फिर जब ज़मीन की फाइनल तैयारी है, सुहागा वगैरह फेर लिया, हल चला लिए आपने, तो उस लेवल पे आके फिर उसकी क्यारियाँ बनाएं आप, ठीक है। क्यारियाँ बना के आप उसको जो है
6 से 6 इंच जो है आप कलम का कमर्शियल अगर ग्रोर आप करना है 6 से 6 इंच आप फासला रख लें कलम का, और लाइन टू लाइन 9 इंच रख लें। अच्छा, ठीक है। वो करें। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो पॉलीथीन शीट ब्लैक कलर की जो है वो डाल लें। उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि उसमें जड़ी बूटी नहीं उगेगी, जड़ी बूटी का उगाव जो है उन बेड्स में क्यारियों में कम हो जाएगा या ना नहीं होगा अगर आप काले रंग की पॉलीथीन की काले रंग की पॉलीथीन शीट। दूसरा ये है कि नीचे जो नमी है वो बरकरार रहेगी, बार बार पानी नहीं आपको देना पड़ेगा, जो पानी का आपका खर्चा होगा वो बच जाएगा। लेकिन फिर उसमें हवा का रास्ता तो बिल्कुल बंद हो जाएगा पॉलीथीन। नहीं, वो उसमें इतना सुराख होता है जो आपने कलम लगाई है कि वहाँ से उसको हवा मिलती है, ज़मीन का जो अपना टेम्परेचर है वो उसको मिल रहा है। लेकिन इसको कहते हैं मल्चिंग का तरीका। ठीक है। तो इसको अगर पॉलीथीन शीट ये है ज़रा अखराजात को अगर कम करना है आपने, ठीक है, वो आप क्यारियों की शक्ल में लगा दें। क्यारियों की शक्ल में लगाने के बाद उसको जब आपने पानी लगाना है तो पहली जो इरिगेशन है उसमें आप क्लोरोपाइरीफास दवाई जो है वो डालें पानी के साथ, ताकि उसमें अगर कोई दीमक वगैरह का खर्चा है, इसमें दीमक का अटैक काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है, गुलाब में। ठीक है। तो क्योंकि जो कलम होती है वो लकड़ी की पुख्ता कलम होती है, तो उसको क्लोरोपाइरीफास आप साथ पानी के फ्लड करें, और हर 15 दिन के बाद 2-3 दफ़ा आप करेंगे ना तो ये ज़मीन से आती है दीमक जो है, वो दीमक का खात्मा हो जाएगा। तो फिर इसको तैयारी करने के बाद आगे फिर जो है यूरिया खाद की जो है एप्लीकेशन का टाइम आ जाता है। जब पौधे थोड़ी सी ग्रोथ अपना शुरू कर लें 3-4 महीने के बाद आप उनको फी एकड़ जो है 1 से 1.5 बोरी जो है यूरिया खाद छटे के जरिए दे दें, पानी लगाएं। ठीक है। और उसके बाद फिर जब डोडी और फूल की स्टेज आती है तो उस पे उसको पोटाश और फास्फोरस की ज़रूरत है। तो वहाँ पे NPK जो है वो खाद जो है वो उनको स्प्रेड करें और पानी लगाएं। फिर इनके जो अगर अच्छी क्रॉप आपने लेनी है तो उनके साथ गोडी वगैरह करते जाएं, जड़ी बूटियाँ निकालते जाएं। 1 साल के बाद आपके ये पौधे इस काबिल होंगे कि अगर आपने 1 लाख पौधा या 80,000 पौधा फ़र्ज करें कटिंग लगाई है 1 एकड़ में, तो उस 10 रुपये का पौधा बड़े आराम से आपका लोग जो है खुश होके लेंगे। 1 साल का पौधा, तो 8 लाख रुपया जो है 80,000 से वो डायरेक्ट इनकम है। तो वो 8 लाख में आप उसका खर्चा निकाल लें, प्लैंकिंग का, हल चलाई का, जो है पानी लगवाया, ज़रूरी दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस पे कटिंग पे ही आ जाएं और 1-1 साल के पौधे तैयार करके देते जाएं तो इसकी बेतहाशा मार्केट है, और आप लाखों रुपया 1 साल में जो फार्मर है कमा सकता है। फिर दूसरी मैं आपके तवसत से एक और बात करना चाहूँगा कि इस पे कोई इतने बहुत ज़्यादा बीमारियों का खतरा नहीं है। अच्छा। छोटी मोटी बीमारियां हैं लेकिन इतने बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं है। आप इसको एक ये सख्त जान क्रॉप मतलब है, ये ऐसी फसल नहीं है जो आपका सारा कुछ तबाह कर दे जैसे बाकी फसलों में होता है। ये जो है नफा नुकसान तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान वाला काम नहीं। आपको फसल पे मेहनत कम करनी पड़ेगी, रिटर्न ज़्यादा है इसका, इनकम ज़्यादा। इसी तरह ये एग्जाम्पल टिब्बा और सुल्तानपुर पे मैं जो है कोट कर सकता हूँ कि वहाँ पे सैकड़ों एकड़ लोगों ने गुलाब लगाया हुआ है। और एक बड़ा एक इनोवेटिव मैं आइडिया आपको दे देता हूँ, बड़ा बेहतरीन सा आइडिया कि वहाँ पे सुरखा गुलाब की पत्तियाँ जो है खुश्क करके सन ड्राई करके उनको आगे इस्तेमाल किया जा रहा है और एक्सपोर्ट किया जा रहा है दुबई में। अच्छा, खुश्क करके भेजा जा रहा है। सुरखा गुलाब इस पे की मज़ीद बात पत्तियाँ करते जो हैं, है। ये एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं फूलों की काश्तकारी पर और देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या एहतियातें हैं जिसको काश्त के वक्त हमने अडॉप्ट करना है, और उसके बाद मार्केटिंग के हवाले से भी जायज़ा ले रहे हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको बेहतर मुनाफा दे सकती हैं। अच्छा ताहिर साहब, ये जो आप बता रहे थे कि वो पत्तियाँ सुखा के वो एक्सपोर्ट की जा रही हैं, वो ये कोई दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं या वो गुलकंद के लिए, या गुलकंद के लिए तो ख़ास फूल है जिसको इस्तेमाल करते हैं, फ्रेगनेंस भी ज़्यादा है, उसमें मिठास का भी एलिमेंट होता है, तो ये कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं? जी ये जो है ना जी दुबई में एक्सपोर्ट हो रही हैं। ठीक है। कराची के ज़रिए जो है ना, तो टिब्बा सुल्तानपुर में जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे सैकड़ों एकड़ पे ये गुलाब लगा हुआ है। टिब्बा सुल्तानपुर की जो मार्केट है वो आप ऐसे समझ लें कि एक मॉडल है पूरे मुल्क के लिए कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ अगर इतना रुझान आ सकता है तो ऐसा ही मॉडल जो है वो और जगहों पर भी अडॉप्ट किया जा सकता है। तो उसका तरीका ये है कि वो उसको ना मुख्तलिफ डिहाइड्रेटर भी है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सन ड्राई भी कर लेते हैं, पॉलीथीन टनल जो है उसके अंदर भी पत्तियों को ना
ड्राई कर लेते हैं। तरीका उसका यह है कि पत्तियां आप अलग सुबह जो है इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उसमें सफाई कर लें, सफाई करके उसको जो है ना फैला दें। फैलाने के बाद जो है वो पत्तियां जो ड्राई होके उसका 5वां हिस्सा वजन रह जाएगा। तो इसमें जो सुर्ख रंग है ना वो है एंथोसायनिन पिगमेंट है। ठीक है। ये एंथोसायनिन पिगमेंट जो है ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, जैसे आपने जिक्र किया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ठीक है। उसमें इस्तेमाल होता है, फिर ये कॉस्मेटिक्स मुख्तलिफ जो है उसमें इस्तेमाल होता है। जो गुलकंदी गुलाब की बात आपने की तो वो उसके लिए गुलकंदी गुलाब रोजा सेंटिफोलिया है, उससे गुलकंद बनती है, उससे अरग गुलाब बनता है, उससे आंखों के ड्रॉप बनते हैं, उसके लिए उससे एसेंशियल ऑयल निकलता है। जैसे फ्रांस की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है फ्रांस की। दुनिया पूरी इसमें, ये फ्रांस तो सिर्फ इस खुशबू से इतना कमा रहा है, हाँ जी, और पूरी दुनिया में राज कर रहा है उसकी खुशबू जो है। तो हमारे पास बड़ी गुंजाइश मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये जो अभी बातें हुई काश के हवाले से, इसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें इनोवेशन है। जैसे हम गुलाब को देखते हैं तो फिर गुलाब में बहुत सारी किस्में आ गई, फिर गुलाब की बहुत सारी रंगत आ गई, फिर गुलाब में बहुत सारी खुशबू के एलिमेंट्स आ गए। तो इस पे भी आपकी यूनिवर्सिटी काम कर रही है, और जो कुछ आप काम कर रहे हैं वो ट्रांसमिट हो रहा है, काश्तकार तक पहुंच रहा है कि वो उस इनोवेशन से या आपकी जो इनिशिएटिव्स हैं उसका फ़ायदा वो काश्तकार भी उठा रहा हो। जी, इसमें असल में पहली तो फार्मर के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ ऐसा पहले मुझे एक फार्मर का कॉल आई, वो कहते हैं मेरे पास 5 एकड़ पर गुलाब लगा हुआ है और मैं इसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ऑयल एक्सट्रैक्ट और रोज़ वाटर वगैरह जो है ना, अर्के गुलाब एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा जी कौन सी वैरायटी है? वो जो वैरायटी उन्होंने लगाई थी वो एक्सट्रैक्शन वाली थी नहीं। अच्छा, वो कहते हैं हमने तो पूछा, इस पर हम लगा दिया हमने ये। वो थे कट रोजेस के लिए, ठीक है, जो कि बुके वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। एक्चुअली ये 2 टाइप्स हैं गुलाब की। ठीक है। एक को हम कहते हैं लूज पेटल्स या स्पीशी रोजेस, जिनकी खुशबू होती है, पत्तियां गिर जाती हैं, ये कब्रिस्तान के लिए या गिफ्ट के, या ये जो वैसे पेटल्स जो यूज़ करते हैं, ये जो लूज पेटल्स होती है इनके एसेंशियल ऑयल्स, पत्तियां बहुत जल्दी गिर जाती हैं, जैसे गुलाब को पकड़े तो पत्तियां गिरने लग जाती हैं। ये होती है असल में ऑयल एक्सट्रैक्शन वाली, अच्छा, अर्के गुलाब वाली। ठीक है। फिर इससे जो है रोज क्रीम्स बनानी है, आई ड्रॉप्स बनाने हैं, वो सारे इन्हीं से बनते हैं प्रोडक्ट से। अगर मैं काश्तकार को पता ही नहीं है कि वो काश क्या कर रहा है और उसकी मार्केटिंग कहाँ करनी है, तो ज़ाहिर है मुश्किल होगी। ये एक तो पहले ये चीज़ है कि पहले आपने यूनिवर्सिटी से या जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उससे ज़रा डिस्कस कर लें कि मैं ये वैरायटी लगाना चाहता हूँ, मेरा प्रोडक्ट ये लेना है मैंने। ठीक है। तो दूसरे जो रोजेज होते हैं उनको कहते हैं हम इंग्लिश रोजेज, मॉडर्न रोजेज। ठीक है। उनकी अंदर वैरायटी है डिफरेंट, यानी कि कलर के लिहाज से, फ्रेगरेंस के लिहाज से, फूल के साइज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है। तो अगर तो आपने लगाने हैं ये जो बुके वगैरह बनाने के लिए जो फ्लोरिस्ट शॉप्स के ऊपर सेल होते हैं, तो वो डिफरेंट वैरायटी है। अगर आपने ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है या रोज़ वाटर इस तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं तो वो डिफरेंट वैरायटी है। ठीक है। तो पहले तो ये आगाही लें, पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। दूसरा इसमें यह है कि हमारी कोशिश ये है कि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बाई प्रोडक्ट्स की तरफ जाए। ठीक है। उसमें हम अपने यूनिवर्सिटी में जो हमारा प्रोजेक्ट है, आज भी हमने जो रोज़ जो है ना एक वैरायटी अपने पास लगाई है जिसको आगे हमने ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करना है। अच्छा, ठीक है। इसमें फार्मर्स के लिए वर्कशॉप इसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं क्या क्या? मैं बताता हूँ सर आप। हाँ, ये एक तो ये हो गया ना कि जी हमने इसका अर्के गुलाब ले लिया, एक गुलकंद ले लिया, एक इसकी खुशबू का फ़ायदा उठा लिया, इसके अलावा भी बाई प्रोडक्ट्स हैं? इनको मेडिसिन के लिए स्वीट्स के अंदर जो है इसको यूज़ करते हैं। अच्छा। स्वीट्स के अंदर ये जो अर्के गुलाब है, अर्के गुलाब बल्कि मैं एक आपको ज़रा इसकी ना इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि पहले ज़माने में रोमन और इजिप्शियन टाइम्स के ऊपर जो क्वींस होती थी वो अर्के गुलाब की पैटर्न्स को चेहरे पर रब करते थे। अच्छा। फॉर यंगनेस के लिए। अच्छा। अभी भी अगर आपके पास प्योर अर्के गुलाब है और आप उस रात को एक मरतबा चेहरा वॉश करके वो स्प्रे करें अर्के गुलाब को, अच्छा, एक वीक में आपको अपनी स्किन में डिफरेंस फील होगा। अच्छा जी। तो इसलिए लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अर्के गुलाब आपको खालिस हो। ये भी पता नहीं है ना जी। हमारे यहाँ तो कोई भी चीज़ जो है जो बिक रही है मार्केट में, चाहे वो घी बिक रहा है, देसी घी बिक रहा है, देसी अंडे बिक रहे हैं, दूध बिक रहा है, अर्के गुलाब बिक रहा है, जो भी है कोई पता नहीं है कि वो वाकई वो है भी सही या नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया कि बाई प्रोडक्ट्स की तरफ आप जो है कोशिश करें कि उस तरफ जाएँ, बाई प्रोडक्ट्स उस तरफ फार्मर्स को जाना चाहिए। तो इसमें यूनिवर्सिटी में हम डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं। दूसरा हमारा फार्मर्स के साथ लिंक है, उनके फार्म्स पर भी जाते हैं। रिसेंटली गुले दाऊदी की एग्जीबिशन थी हमने यूनिवर्सिटी में करवाई, उसमें हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ थे, साथ ग्रोवर्स फार्मर्स को भी बुलाते हैं? फार्मर्स को बुलाते हैं, बल्कि वो हमारे पास स्टॉल लगाते हैं जो गुले दाऊदी थे। टिब्बा सुल्तानपुर से भी हमारे पास फार्मर इधर मौजूद थे। वो सवाल वही रह गया कि इसमें जो आपकी इनोवेशन है, मैंने जैसे आपको कहा कि अभी इसमें बहुत सारे रंग हैं, तो उन रंगों की डिमांड क्या है ये फार्मर को नहीं पता कि जी वो कौन सा गुलाब लगाए, कौन सी रंगत वाला गुलाब लगाए जिसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी। अच्छा, फिर ऐसी है जो रेयर है,
ان کی مارکیٹ کیسے ہو سکتی ہے، یہ سارا کچھ ہے جو تحقیق کا شعبہ ہے، بتا سکتا ہے. تو یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ فارمر تک پہنچ رہا ہے، گروور تک پہنچ رہا ہے، ٹرانسمٹ ہو رہا ہے؟ اچھا، اس میں ویسے اب پہلے سے ٹرینڈ بہت چینج ہو گیا ہمارے ساؤتھ پنجاب میں بھی. ٹھیک ہے. اب لوگ ڈیفرنٹ جو جیسا کہ اگر میں سٹاک فلاور کی بات کروں تو آج سے اگر ہم 1-2 سال پہلے دیکھیں تو اس کو ہمارے ادھر نام ہی نہیں تھا، یعنی کہ لوگ گروور نہیں لگاتے تھے. اب ہمارے گروور اس کو بہت زیادہ لگا رہے ہیں اس کی امپارٹنس کے لحاظ سے. تو ایک تو یہ بات چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، اس میں ورکشاپ سیمینارز جو ہے فارمرز کے ساتھ ہمارے، اس میں بہت زیادہ اس لحاظ سے امپرومنٹ آ رہا ہے. آپ کا میسج ادھر تک پہنچ رہا ہے. تو دوسری جو چیز ہے کہ اس کو مارکیٹ میں لے کر جانا، اس کے 2 ویز ہیں. جس طرح کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو آن لائن بزنس کی طرف لا رہے ہیں. تو جس طرح کہ فار ایگزامپل میرے اسٹوڈنٹ نے کوئی ڈفرینٹ بکیں بنایا، اس نے اپنی فیس بک پر لگائے، وہ کہتا ہے سر مجھے 8 سے 10 آرڈر مل گئے ہیں اس کے، اچھا، کہ یہی سیم ہمیں بنا کر آن لائن بھیج دیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بڑا اچھا ہمارے پاس ہے کہ جو فارمرز ہیں تو وہ تھوڑا سا اس طرف بھی آئیں کہ اس کو آن لائن جو ہے نا اپنی سیل کی صرف فارمر نہ آئیں بلکہ وہ نوجوان جو جن کے پاس بے روزگاری کا معاملہ ہے، صرف وہ نوکری ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ان کے پاس بھی یہ رستہ ہے نا جی. آپ اچھے بوکے بنانے کا علم سیکھ لیں، آپ کے پاس آ کے یونیورسٹی سے کورسز وورسز بھی کروا رہے ہیں. اگر آپ کورس شروع کروا دیں بوکے بنانے کا تو اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوگی. جی ویسے بالکل آپ نے اچھی بات کی. ریسنٹ ابھی بھی ہمارا لینڈسکیپ ڈیزائن کے اوپر ایک شارٹ کورس چل رہا ہے یونیورسٹی میں. اچھا اچھا. تو یہ ہم ود دی پیسج ہم انٹروڈیوس کرواتے رہتے ہیں کہ جو ڈگری نہیں کرتے وہ لوگ ہمارے پاس. اس میں بھی ہمارے پاس گروورز آئے ہیں ڈفرینٹ ملتان سے جو کہ یہ کورس کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو اس طرح فلاور ارینجمنٹ کا جس طرح کہ ایک ٹریڈیم ہوتا ہے، جس طرح ایکویریم ہے نا، وہ ایکویریم بناتے ہیں، وہ ایک منی اوشن سے لگتا ہے، اسی طرح ایک ٹریڈیم ہوتا ہے، یعنی کہ اسی طرح ایک چھوٹے سے گلاس کے اندر پورا فارسٹ. اچھا. تو یہ بھی جو ہے نا ایک فن ہے. یہ ایسا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے فیمیل اسٹوڈنٹس بھی جو وہ گھر میں بنا کر اس کو آن لائن فیس بک پر لگائیں، اور یہ تو کنفرم ہے اس کے ان کو آرڈر بھی ملیں گے. بڑی ڈفرینٹ سی چیز ہے نا جی، تو بکے کی دھڑ دھڑ. تو یہ بھی ہماری بلکہ اسٹوڈنٹ میں یہ ہماری کلاس کے اندر ہم نے کمپٹیشن بچوں میں کروایا، تو اس میں بچوں کو جو ہے نا اس لحاظ سے اویئرنیس بھی ہے، اور جو ہے نا بچے اس طرف بزنس میں پھر آ بھی رہے ہیں اس لحاظ سے. ٹھیک ہے. اچھا صغیر صاحب، یہ آپ گلاب کی کون سی قسم کاشت کرتے ہیں؟ سرخا گلاب لگاتے ہیں، اور موتیا ہے، اور اس کے ساتھ نواڑو ہے، اور چاندنی بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ مالا میں لگتی ہے اور گجروں میں لگتی ہے. اچھا، استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سرخا گلاب ہے یہ پیسے اچھے دے جاتا ہے؟ بہت اچھے دے جاتا ہے. اچھا، بہت اچھی. آپ کو دیکھ کے اور کاشتکار ارد گرد کے وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں یا کوئی رجحان اتنا نہیں ہے؟ ان کا بھی رجحان اچھا ہے، وہ بھی کاشتکار کر رہے ہیں. اور کاشتکاروں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شبرات میں بھی بہت اچھے پیسے ملتے ہیں، اور ماہ رمضان میں جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس وقت، اور محرم میں اس وقت بھی پتیاں بہت اچھے ریٹ پہ بک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو شادی بیاہ اس میں بھی، اور جو حج عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں اس کے لیے بھی مالا اچھے. اور جب آیا نیا سال آیا اس وقت بھی اچھے، اس وقت بھی بہت اچھے. ویسے اس کے رستے بھی اور ڈھونڈنے چاہیے نا جی. ہم نے وہ 5-7 بس محدود کر دیے ہیں. اور محبت کا کوئی وقت تو نہیں ہوتا یہ تو آپ سارا سال ہی لوگوں کے ساتھ سارا سال بھی بکتے ہیں. اور یہ 14 فروری آئے گا، اس میں بھی بہت گفٹ دیتے ہیں، کلیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت اچھا ریٹ مل جاتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے خود بھی کبھی سوچا کہ اس کی مارکیٹنگ یا اس کو بیچنے کے حوالے سے، یا اس کے بوکے بنا کے بیچے جائیں، یا اس کا سٹال لگا دیا جائے، کبھی ایسا خیال آیا؟ کوشش کیا ہے ہم نے. اچھا. بہت کیسا رسپانس کیسا رہا؟ اچھا ہے. بہت. آپ نے کیا کیا؟ کوئی سٹال لگایا اس کا یا کوئی بوکے سٹال لگایا تھا؟ ماہ رمضان میں لگا دیتے ہیں. اچھا، ماہ رمضان میں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہار بناتے ہیں؟ ہار بناتے ہیں، مالا بناتے ہیں. یہ ویسے آپ طاہر صاحب ماشاءاللہ آپ نے دنیا دیکھی ہے، جہاں دیدہ آدمی ہے. یہ ہم نے پھولوں کی بجائے نوٹوں والے ہار کیوں بنانا شروع کر دیے؟ دیکھیں نا اس میں تو کوئی پیچھے کوئی نفسیات ہے، یا ہونے تو پھولوں کے ہار چاہیے نا جی، ان کو چھوڑ کے ہم نوٹوں کے ہار کی طرف چلے گئے. یہ بالکل جی، یہ جو ہے نا روایت چلتی آ رہی ہے انڈو پاک کی. اس کے بعد پاکستان سیپریٹ ہوتا ہے، انڈیا الگ ہوتا ہے، پاکستان الگ ہوتا ہے. تو یہ روایت ہے ایک قسم کا نا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی. تو ڈاکٹر صاحب یہ دنیا میں بھی رجحان ہے اس طرح؟ کبھی آپ نے بڑا سفر کیا ہوگا کبھی یہ کوئی اس طرح کے نوٹوں کے ہار بنائے جاتے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ، میں یو ایس اے میں بھی 6 منتھ کے لیے ریسرچ میں گیا تھا پی ایچ ڈی میں. وہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں فریش فلاورس کو. فریش فلاورس کو. اور اس طرف بہت زیادہ مارکیٹ ہے. ادھر جو ہے نا وہ اپنی پروڈکشن لیتی جو ہے نا وہ فنکشن کے لحاظ سے ہیں.
जिस तरह के न्यू ईयर है वो पिछले 6 महीने से अपने फूल तैयार कर रहे हैं इस दिन के लिए, फिर ये जा जाएगा। वैसे अगर इस पे पाबंदी लगा दी जाए ये नोटों के हार पर, तो उसके 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो नोट भी ख़राब होते हैं ना जब आप पिन अप करते हैं, फिर पिन खोलते हैं, और दूसरा ये है कि शो ऑफ भी है कि अच्छा फिर एक ने इतने पैसों का डाला है। अब तो मैंने देखा कि 5-5 हज़ार के नोट के हार बने हुए होते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अगर ये फूलों के हार हों तो उसकी खुशबू का एलिमेंट भी होगा और फिर काश्तकारों को भी फ़ायदा होगा। हाँ, वो फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स लगा सकते हैं उसमें, यानी कि एक जो है ना वो दूल्हे के लिए एक डिफरेंट किस्म का बुके बना सकते हैं। जिस तरह के अगर हम आउट ऑफ कंट्री देखें, जो ब्राइडल बुके है बड़ा कॉस्टली बुके होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी आपकी बात है कि हमें वो नोटों वाले हार छोड़कर ये फ्लावर्स की तरफ। अच्छा, इस पे आप भी गौर कीजिएगा। अभी ये हमारा इनिशियल प्रोग्राम था, फिर इस पे एक पूरा प्रोग्राम करेंगे कि देखेंगे कि इसके बहुत सारे रास्ते हैं। असल में हमें सारों को मिल के आगे बढ़ने के वो रास्ते भी तलाश करने हैं। काश्तकार को आप मुनाफा कोई दिखाएंगे ना तो वो इस तरफ ज़्यादा आएगा और फिर आगे बढ़ेगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, मैं मज़ीद बात करता नाज़रीन। हमने फूलों की काश्तकारी पे बात की है और आपको बताया है कि आप इस काश्तकारी की तरफ आएँ। हमारे माहिरीन ने बताया कि 8 से 10 लाख रुपए फ़ी एकड़ आप कमा सकते हैं, अच्छा मुनाफा है। और फिर इसके बाद जो मार्केटिंग का एलिमेंट है उसमें बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। ऐसे बेरोज़गार नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिल रही, वो सिर्फ नौकरी ढूंढने में ना रहें, वो फूलों को सजाने संवारने के हवाले से जाने। यूनिवर्सिटियों में इसके हवाले से कोर्सेज हैं, आप खुद अपनी इनोवेशन, आपका अपना जहन है, उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट अंदाज से वो फूल आप सजा के बुके बना के उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम फ्लोरिकल्चर पर बात करेंगे। फ्लोरिकल्चर क्या है? फूलों की काश्त को बुनियादी तौर पर हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हमारे यहाँ फूलों की काश्त कितनी हो रही है, इसमें आगे बढ़ने की कितनी गुंजाइश है, काश्तकारों का इस तरफ क्या रुझान है, हम फूलों को मार्केट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मकामी सतह पर भी कहाँ मार्केट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी कहाँ जगह बना सकते हैं, और फूलों की जो हमारे पास अक़साम हैं क्या वो सब हैं जो दुनिया में हैं, या इस हवाले से भी कुछ इनोवेशन लाई जा सकती है, बेहतरी लाई जा सकती है, मज़ीद बाहर से अच्छे पौधे लाए जा सकते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं ताहिर सईद साहब। आप असिस्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, महकमा ज़राअत से मुंसलिक हैं और ये फूलों की काश्तकारी को बहुत अच्छे अंदाज से समझते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर गुलजार अहमद साहब। आप ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से वाबस्ता हैं और पढ़ाते भी हैं, तहकीक भी करते हैं। और तीसरे मेहमान मोहम्मद सगीर, आप काश्तकार हैं और फूलों की काश्तकारी भी करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो सब पहले तो ये बताइएगा कि ये हम तो इस फ्लोरिकल्चर को अमूमी तौर पे देखते हैं कि घरों में पौधे शौधे लगा लिए, क्यारियाँ बना ली और उससे ही जो खुशबू भी है और माहौल भी अच्छा कर लिया। लेकिन दुनिया में अब इसका बड़ा रुझान है, इसको काश्तकार बतौर पेशे के तौर पे अपना रहे हैं और उसमें बड़ा पैसा भी कमा रहे हैं। और हॉलैंड की मिसाल हमारे सामने है, सिर्फ फूलों से वो दुनिया में बड़ा पैसा ज़र मुबादला कमाता है। तो क्या पाकिस्तान में इस तरफ काश्तकार का रुझान नहीं आया, इस वजह से हम इतना आगे नहीं बढ़ सके, या ये कोई ज़्यादा मुनाफा बख्श नहीं है इस वजह से आगे नहीं बढ़ सके? वजह क्या रही कि हम इसमें पीछे रह गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और ये बड़ा एक अहम मौजू जो है आपने रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा फ्लोरिकल्चर का फील्ड बहुत पोटेंशियल वाला फील्ड है। ठीक है। जैसे आपने कहा कि हॉलैंड जो है वो बहुत सारे फूल जो है पैदा कर रहा है और बड़ा मुकाम है। अब हमारे पास अनवाउ अक़साम के जो पौधे हैं, फूल हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो फ्लोरिकल्चर में आते हैं, वो पैदा हो सकते हैं। और हमारे पास माशाल्लाह इतना डाइवर्स एनवायरनमेंट है, हमारी सॉइल जो है इतनी बेहतरीन है कि हमारे पास कोई कमी नहीं। अच्छा। कि किसी हवाले से जो सारे फूल हम पैदा कर सकते हैं, हम सारे फूल जो है पैदा कर सकते हैं। मुख्तलिफ मौसम है हमारे पास, इनका मौसमों के साथ बड़ा बेहतरीन तल्लक है। कोई सर्द मौसम में पैदा हो सकता है, कोई गर्म मौसम है, तो हमें हर तरह मोतदल मौसम है, हर जगह पर जो है जी बिल्कुल काश्तकारी हो सकती है। तो इसका मतलब एक गुंजाइश बहुत है हमारे पास, बहुत पोटेंशियल है। काश्तकार इस तरफ इतना आया नहीं, अब तो शायद इस तरफ रुझान बढ़ रहे, लेकिन पहले इतने रुझान था नहीं शायद, या फसलें अच्छी हो रही थी, फसलों से मुनाफा अच्छा हासिल हो रहा था, इस तरफ नहीं आया, या क्या वजह आपके ख्याल में क्या बनी? जी ऐसे है कि पहले ज़्यादा एग्रोनॉमिक क्रॉप्स जो हैं
ٹھیک ہے، گندم ہو گیا، کپاس ہو گئی، باقی چیزیں، شوگر کین ہے. اب میرے خیال ادھر سے کوئی مایوسی ہوئی ہے تو شاید جی بالکل. اس کا دیکھیں اس میں پوٹینشیل کی اگر بات کریں تو فلوریکلچر میں سب سے زیادہ پوٹینشیل میں کہتا ہوں. اگر سمپل ایک کراپ کو اگر آپ کوئی فارمر لے لیتا ہے، سرخا گلاب ہے اس کو لے لیتا ہے، گلیڈیولس کو لے لیتا ہے، سینٹیفولیا گلاب جو گلقندی گلاب ہے اس کو لے لیتا ہے، تو آپ اس ایک اکیلی کراپ پہ جو ہے اتنا زیادہ کام کر کے ارننگ کما سکتے ہیں کہ آپ دوسری جو ٹریڈیشنل کراپس ہیں وہ ان سے کہیں آگے نکل جائیں گے. ایک سرخا گلاب کے 1 ایکڑ سے کتنی ارننگ ہو سکتی ہے ایسے دیکھیں سرخا گلاب جو ہے اب اس کا سیزن ہے، جو کاشتکار دیکھ رہے ہیں میں ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ 15 جنوری تک وہ آپ سرخا گلاب کی کلموں کی جو ہے نا لگوانا، کٹائی اور لگوانا، تیاری اور لگوائی جو ہے وہ مکمل کر لیں. 15 جنوری کے بعد جو ہے موسم چینج ہو جائے گا تو اس میں وہ اتنی کامیابی جو ہے وہ نہیں رہے گی. 15 جنوری تک سرد موسم ہے، آپ اس میں اس کو مکمل کریں. مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ عمل کریں، دیمک کی دوائی ڈالیں. تو جو ارننگ کی بات آپ کر رہے ہیں تو ارننگ اس میں جب 2 سال کے بعد یہ کراپ فیلڈ میں جاتی ہے تو اس کا پوٹینشیل ہے 14-15 سال تک یہ رہتی ہے. اس کی ہر سال آپ کٹائی کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے آپ لاکھوں روپیہ جو ہے 2 سے 3 لاکھ روپیہ جو ہے آپ کو ایک ایکڑ جو ہے 3 سال کے بعد دینا شروع کر دے گا. اتنا ریٹرن اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس کی کاشتکاری کے حوالے سے جو پہلو ہیں ان پہ بات کریں گے. ایک اس میں اہم پہلو جس میں آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں کہ اچھا منافع ہے، وہ مارکیٹنگ سے جڑا ہوا ہے. تو مارکیٹنگ ہم کتنی کر رہے ہیں، مارکیٹنگ ٹھیک ہے، کاشتکار مطمئن ہے نہیں، اس پہ مزید بھی بات کریں گے. میں ذرا باقی مہمانوں کو شامل کر لوں. ڈاکٹر صاحب آپ اس شعبے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. تو یہ ابھی جو سوال میں نے کیا کہ ہمارے رجحان اس طرح نہیں ہے جیسے دنیا کا رجحان ہے، تو اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا رہی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سر جو ایک میجر ریزن ہے نا وہ ہے پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ. اچھا، اگر ہم گندم دیکھیں، گندم کی ہارویسٹنگ کر لی، آپ اسے 1 سال کے لیے اسٹور کر لیں. پھول جب اس کی سٹیج آ گئی یو ہیو اونلی 1 ویک. 1 ویک کے اندر ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے، مارکیٹ تک پہنچانا ہے، بلکہ بیچنا ہے، اس کو سیل کرنا ہے. تو ہمارے جو فارمر جو موسٹلی جو ہے کہ کنونشنل جو کراپس کے اندر گرو کرتے ہیں ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا اس فیلڈ میں. وہ یا کچھ لگاتے ہیں تو اس کی پراپر پہلے مارکیٹنگ کو سرچ نہیں کرتے، یہ دیکھنا نہیں ہے ہم نے اس کو کدھر پہلے سیل کرنا ہے اور کس سٹیج پر ہارویسٹ کرنا ہے. ہر پھول کی اپنی سٹیج ہے. جس طرح کہ اگر ہم روز کی بات کریں، اگر پھول کھلا نہیں ہے اس کی جو ہے نا پتیوں کا کلر شو الگ قیمت ہے، کھلے ہوئے پھول کی الگ قیمت ہے، پھر پتیاں بیچنی ہیں تو اس کی الگ قیمت ہے. تو اس لیے اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس کریں، اپنے فارمرز کو اس لحاظ سے گائیڈ کریں، ان کی ٹریننگ کریں، تو اس میں پروفٹ اکثر اوقات دوسری کراپ سے بھی زیادہ ہے. اچھا، اگر ہم اس کے جو ہے نا ایک فریش فلاور سیل کریں اور پروڈکٹس بنائیں اس سے، جو بائی پروڈکٹس بنائیں. اچھا، یہ بائی پروڈکٹس بنانی ہے یا اس کی مارکیٹنگ اچھی کرنی ہے یا باقی جو شعبے ہیں اس میں زیادہ تر تو ہم وہ بوجھ بھی کوشش کرتے ہیں فارمر پر ڈال دیں کہ جی فارمر آئے، جی وہ بائی پروڈکٹ بنائے، جی فارمر مارکیٹنگ کرے. حالانکہ اس کے لیے تو الگ شعبہ ہونا چاہیے اور مارکیٹنگ کو بھی الگ. فارمر کا کام تو یہ ہے کہ آپ کو اچھی فصل پروڈیوس کر کے دے دے کہ جی یہ میں نے اچھی فصل پروڈیوس کر دی ہے، جی اب آپ لیں. جیسے باقی فصلوں میں گندم آپ سے وہیں موقع پر خریدنے کے لیے آڑتی آ جاتا ہے، خریدار آ جاتا ہے. کپاس موقع پر خریدنے کے لیے بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، باقی فصلوں کی. تو یہ فلاور میں بھی تو ایسا ہو کہ باقی شعبوں کو ہم انیبل کریں کہ وہ آگے بڑھیں. جی سر، اس میں ایک یہ بھی ریزن ہے کہ ہمارے جب فارمر کسی فلوریکلچر کراپس کو گرو کرتے ہیں نا وہ اونلی 1 یا 2 کراپ کے اوپر فوکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم گلیڈیولس کی بات کریں، ہماری ادھر ملتان کی مارکیٹ میں بہت زیادہ لوگ اسے گرو بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ صرف 1 کراپ کے اوپر، 1 یا 2 کراپ کے اوپر. اب فلوریکلچر میں ہم کنسیپٹ دے رہے ہیں اسپیشلٹی کٹ فلاورس، یعنی کہ ایسے پھول جو روٹین میں یوز نہیں ہو رہے ایز اے کٹ فلاور، اب ان کو انٹروڈیوس کریں. ہم بلکہ ان کے اوپر ورک کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں ان کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں کہ ملتان کے ایریا میں کون کون سے پھول ہم نیل لا سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ تحقیق کر رہے ہیں اور یہ دیکھ بھی رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پھولوں کے حوالے سے جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے وہ اپڈیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، ایسی ہے جو کاشتکاروں کی ضروریات بھی پوری کر رہی ہو، یا اس میں بڑی گنجائش ہے کام کرنے؟ مارکیٹنگ کے لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ ورک کرنے کی ابھی ضرورت ہے. جس طرح کہ اگر ہم ان کی جو ویز لائف کی ہی بات کریں، ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے پھول کو مارکیٹ میں لاتے ہیں جہاں وہ 6 دن کے لیے فریش رہتا ہے، اگر وہ 12 یا 15 ڈیز کے لیے ہو جائے تو وہی اس کا ڈیوریشن بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ریسرچ کی تو ہم نے ڈفرینٹ ویسٹ سولوشنز ہوتے ہیں جو اس کی لائف کو بڑھاتے ہیں آفٹر ہارویسٹنگ، تو اس میں ہم نے پلانٹ ایکسٹریکٹس یوز کیے. اس میں ایک عام کامن ویڈ یوز ہوتی ہے اک.
अच्छा, तो हमने इसका एक्सट्रैक्ट जो है ना वो फर्स्ट टाइम था, अभी हम कोई वैसे हमारा एक आइडिया था, इसको चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके जो एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर पेस्टिसाइड की जो है ना वो होती हैं एबिलिटी होती है। ठीक है, तो हमने उसको यूज़ किया, जो फूल की लाइफ थी 6 डेज़, हमने ऑब्ज़र्व किया वो 13 to 14 डेज़ तक भी फूल गया। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के ऊपर काम हमें करना चाहिए। नई पैकिंग जो है वो मटेरियल को जो है पैकिंग मटेरियल के ऊपर बड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट पे भी हम बात करेंगे कि वो उसके भी तो रास्ते हैं ना जी, आखिर उसको भी ढूंढना चाहिए। सगीर साहब, क्या हाल है आपके? कितने अरसे से काम कर रहे हैं तो फ्लोरिकल्चर का? तकरीबन 20 साल हो 20 साल हो गए। पैसा वैसे अच्छे कमा रहे हैं या? बहुत अच्छे कमा रहे अच्छा, हैं। हाँ जी। क्या क्या काश्त करते हैं आप फूलों में? आप गुलाब? गुलाब भी करते हैं और आलू भी है हमारे। अच्छा, तो गुलाब सारा मकामी मार्केट में भेजते हैं या कोई और शहर से बाहर भी जाते हैं? नहीं नहीं, मकामी मार्केट मकामी मार्केट में बिक जाता है सारा? बिक जाता है सारा। क्या आप जब आपकी फसल तैयार होती है तो आड़ती खरीदार वो लेने के लिए खुद पहुंच जाते हैं या आपको बंदे ढूंढने पड़ते हैं कि जी? कुछ ढूंढने पड़ते हैं, वैसे तो हमारे पास आ जाते हैं, अच्छा, उधर से उठा के ले जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, फिर अगर वहाँ ना पहुंचे तो फिर ढूंढने पड़ते हैं। वैसे मार्केट है क्या? बड़ी मार्केट कहाँ है? बड़ी पाकिस्तान में? मार्केट घंटा उधर है टिब्बा सुल्तानपुर में। ठीक है, वहाँ उधर मंडी हम- सुनाया लगती है कि हाँ जी जी। वो वहाँ सारा कुछ। और लेकिन हमारी इसके अलावा अगर टिब्बा सुल्तानपुर से बाहर भेजना हो तो फिर फूल कहाँ भेजते हैं? फिर उधर कराची भी कराची है। में मार्केट हाँ है। जी, उधर बहुत अच्छा रेट मिल जाता है, हैदराबाद में भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा ताहिर साहब, ये हॉर्टिकल्चर का जो शोबा है वो बाकी चीज़ों को देखने के साथ साथ इसको भी देख रहा होगा, फूलों की काश्तकारी को, इसकी अफजाइश और बेहतरी और इसकी मार्केटिंग, इस पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं? तो और महकमा ज़राअत जो है किन किन चीज़ों को आप देख रहे हैं और उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, हमारा फ्लोरिकल्चर का जो रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे, उस पे हमारे सुरखा गुलाब पे मुख्तलिफ रिसर्च एक्सपेरिमेंट हैं। फिर इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं, उनका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि उनका इम्पैक्ट फूलों पे कैसा है, उनसे कितने बेहतर फूल जो है वो पैदा हो सकते हैं। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड वगैरह जो है उनको स्प्रे हम करके गुलाब पे ही वो देख रहे हैं कि उससे उसकी एक नेचुरल चीज़ें जो है उनसे आगे कितना उसमें बेनिफिट लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा मुख्तलिफ और ट्रायल है, फर्टिलाइज़र के हैं, खाद का कि खाद कितनी मिकदार में डालें तो पौधे जो है ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे। हम इसकी काश पे बात करेंगे, उसमें ये खाद और पानी की सूरत हाल भी देखेंगे। लेकिन ये मैं जानना चाहूँगा कि इसकी मार्केटिंग को भी कोई शोबा देख रहा है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग देख रहा है? क्या कौन देख रहा है इसको जी, मार्केटिंग में? ऑफिशियली तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, पंजाब गवर्नमेंट का शोबा जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। इसके अलावा जो मैं ये समझता हूँ कि इसके अगर मार्केटिंग में देखा जाए तो गैप्स हैं हमारे पास। देखिए चाइना है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो मैं कुछ इसी तवसत से बात करना चाहूँगा कि इसकी मार्केटिंग जो है हमें मैक्सिमम बेनिफिट देना किसान को, फार्मर जो है उसको मैक्सिमम, क्योंकि प्रोड्यूसर वो है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे मिडल मैन जो है वो सारा पैसा ले जाता है, जिसको आड़ती कहते हैं, ठीक है। लेकिन फार्मर जो है वो नुकसान में जाता है, कम पैसे मिलते हैं। तो अगर देखें, अगर डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाए, चाइना है उसमें बहुत सारी कमोडिटीज़ जो है वो एट फार्मर्स फील्ड जो है गवर्नमेंट खुद उठाती है और नेट कैश जो है वो फार्मर को मिलता है और फार्मर जो वहाँ का खुशहाल है। अगर इस तरह का कोई सेटअप हमारे यहाँ हो, गवर्नमेंट सरपरस्ती करे और डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो, आड़ती जो है दरमियान में से निकल जाए, तो फार्मर को जब उसके डोर स्टेप पे पैसा मिलेगा, फार्मर्स फील्ड पे पैसा मिलेगा, तो वो उसका जो है बड़ी हौसला अफजाई होगी। दुनिया में एक तो ये भी रुझान है ना कि जी इंटरनेशनल मार्केट आपको ढूंढनी नहीं पड़ती बल्कि चल के आपके पास आ जाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास प्रोडक्शन है तो दुनिया से ग्राहक आ जाएंगे, आपसे यहीं खरीद के लेके जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ हम जिन मुश्किल हालात का शिकार रहे तो दुनिया ने इधर आके खरीदारी करना भी बंद कर दी ना जी। ये भी एक, अब हमें मंडियाँ खुद ढूंढनी पड़ती हैं, ग्राहक खुद ढूंढना पड़ता है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।